بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی محمد رسول اللہ کریم. یہ پرابلم انٹیگرل کیلکولس کے ملٹیپل انٹیگریشن چیپٹر سے ہے. فائنڈ وائی ڈبل انٹیگریشن ایریا لائنگ ان سائڈ سرکل آر از اکول ٹو اے سائن تھیٹا اینڈ آؤٹ سائڈ کوآرڈینیٹ آر از اکول ٹو اے 1 مائنس کاس تھیٹا. دونوں ہی فگر بہت ہی فیمس ہیں، اس لیے اس کو ہم ڈائریکٹ ڈرا کر دیں گے. اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو پوچھیں گے تو کرو ٹریسنگ کے انترگت آ جائے گا. دا ایکویشن آف گیون کروس، تو دونوں کروس کے ایکویشن ہم لکھ لیتے ہیں. پہلا تو یہ سرکل ہے اور اس کا ایکویشن آر از اکول ٹو اے سائن تھیٹا، اس کو ایکویشن نمبر 1 دے دیتے ہیں. اور دوسرا آر از اکول ٹو اے 1 مائنس کاس تھیٹا، ایسے ایکویشن نمبر 2 ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں. اور سب سے پہلے تو ان دونوں کا ہم یہاں پر انٹرسیکٹنگ پوائنٹ نکال سکتے ہیں کہ کہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں. حالانکہ اس کو پلاٹ کریں گے تو بھی اس پوائنٹ پتہ چل جائیں گے ہم کو. تو ہم پہلے سولو کرتے ہیں، تھیٹا کی ویلو نکالتے ہیں کس پوائنٹ پر یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے. تو فرام 1 and 2 دونوں کو آپس میں برابر رکھیں گے، آر کی دونوں ویلو آپس میں برابر رکھیں گے. تو اے سائن تھیٹا کی ویلو ہو جائے گی اے 1 مائنس کاس تھیٹا کے اکول، اے سے ایک کینسل ہو جائے گا. اب اس بچے کا وہ لکھ دیتے ہیں سائن تھیٹا از اکول ٹو 1 مائنس کا کاس تھیٹا. اب ہم کاس کی ایسی ویلو رکھیں گے کہ 1 سے 1 کینسل ہو جائے، تو اس کی ویلو ہوتی ہے 1 مائنس کا 2 سائن اسکوائر تھیٹا بائی 2. یہ سائن کاس کی ہاف اینگل میں ویلو ہے، ایسے میں سائن کی بھی ہاف اینگل میں ویلو 2 سائن تھیٹا بائی 2 انٹو کاس تھیٹا بائی 2 لکھ لینا چاہیے. بیکٹ اوپن کرنے پر 1 مائنس 1 یہ پلس ہو جائے گا 2 سائن اسکوائر تھیٹا بائی 2. 1 سے 1 کینسل ہو جائے گا 2 سائن تھیٹا بائی 2 انٹو کاس تھیٹا بائی 2. اب اس ٹرم کو ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ٹرانسپوز کر دیں گے تو 2 سائن تھیٹا بائی 2 انٹو کاس تھیٹا بائی 2 اور مائنس ہو جائے گی 2 ٹائمس سائن اسکوائر تھیٹا بائی 2 رائٹ ہینڈ سائڈ میں 0. ان دونوں ٹرمس میں کامن ہے 2 سائن تھیٹا بائی 2، اس کو ہم نے باہر لے لیا تو بچے گا کاس تھیٹا بائی 2 اور یہاں پر بچے گا ایک پاور سائن کی یعنی سائن تھیٹا بائی 2 رائٹ ہینڈ سائڈ میں 0. اب ان دونوں ٹرمس کو الگ الگ ہم فیکٹر کو الگ الگ 0 کے برابر پٹ کریں گے، یعنی سائن تھیٹا بائی 2 کو 0 کے اکول پٹ کریں گے اور اس کاس تھیٹا بائی 2 مائنس کا سائن تھیٹا بائی 2 کو 0 کے اکول پٹ کریں گے. تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائن تھیٹا بائی 2 0، سائن کس اینگل کی ویلو 0 ہوتی ہے، یہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ سائن 0 ریڈین کی ویلو ہوتی ہے. اس کو ہم ٹرانسپوز کریں گے تو کاس تھیٹا بائی 2 کی ویلو ہو جائے گی سائن تھیٹا بائی 2 کے ایکول. یہاں پر سائن ہٹا دیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھیٹا کی ویلو ہم کو مل گئی ہے، یعنی تھیٹا بائی 2 کی ویلو مل گئی ہے یہ 0 کے برابر. اس سے ہم تھیٹا نکالیں گے تو 2 کا ادھر جا کے انٹو ہوگا 0 میں تو 0 آ جائے گا، ایک ویلو تھیٹا کی آگے 0، دوسری ویلو یہاں سے مل رہی ہے. ہم پوری ایکویشن کو اگر کاس سے ڈیوائڈ کر دیں تو یہ ویلو تو 1 ہو جائے گی کاس اپان کاس، اور سائن یہاں پر ڈیوائڈ کریں گے تو سائن تھیٹا بائی 2 اپان کاس تھیٹا بائی 2 ہو جائے گا. اور سائن اپان کاس کی ویلو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ٹین تھیٹا بائی 2 کے اکول ہوتی ہے. اگلے پیج پر دیکھ رہے ہیں اگلی اسٹیپ میں تھیٹا بائی 2 از اکول ٹو یہ 1. ہم لوگ جانتے ہیں کہ ٹین کس اینگل کی ویلو 1 ہوتی ہے، ٹین 45 کی ویلو ہوتی ہے جس کو ہم پائی بائی 4 بھی کہتے ہیں ریڈین میں. تو ٹین تھیٹا بائی 2 برابر دس 10 سے 10 یہاں پر ہٹ جائے گا تو تھیٹا بائی 2 کی ویلو پائی بائی 4 کے اکول ہو جائے گی. 2 سے 4 کینسل ہو جائے گا، 2 ٹائمس اپان میں ہے دونوں، تو تھیٹا کی ویلو پائی بائی 2 آ جائے گی. اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں کب 0 پر، کیونکہ تھیٹا کی 2 ویلو ملی ہیں 0 اور پائی بائی 2، ان 2 پوائنٹس پر یہ دونوں کرو ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں. پہلا ہے یہ سرکل اور دوسرا ہے کوآرڈینیٹ. تو یہ کوآرڈینیٹ بہت فیمس کوآرڈینیٹ ہے، نگیٹو ہے اس لیے یہ اس کا نگیٹو ڈائریکشن بنے گا. یہاں پر ہم یہ تو لے لیتے ہیں پول جو اوریجن کے کرسپونڈنگ ہوتا ہے پولر کوآرڈینیٹ سسٹم میں، اور یہ جو ایکس ایکسس کے کرسپونڈنگ ہوتی ہے یہ انیشیل لائن ہوتی ہے، یہ تھیٹا از اکول ٹو 0 بھی ہوتی ہے. اور یہ لائن جو ہوتی ہے وائی ایکسس کے کرسپونڈنگ تھیٹا از اکول ٹو پائی بائی 2 ہوتی ہے.
अब यहाँ पर कॉर्डियाइड चूँकि निगेटिव है तो आपको मालूम है किस तरीके से ये बनाया जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा, इस दिल की तरह, कॉर्डियाइड है इसलिए। और आपको ये भी पता है कि जिसका इक्वेशन r = a 1 - cos थीटा है, तो ये a जो होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी a होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिमेट्रिकल होता है, इसलिए यानी थीटा इनिशियल लाइन के बाद सिमेट्रिकल होता है, इस लाइन एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल होता है, जैसे ऊपर बनता है वैसे नीचे। तो ये दूरी a है तो ये दूरी भी a होगी। हम इसको यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हमें सर्किल का इक्वेशन बनाना है जो ऊपर ही बनेगा, क्योंकि ये r = a sin थीटा है। आप चाहें तो उसको प्लॉट कर सकते हैं, थीटा बराबर 0 रखेंगे तो r की वैल्यू भी 0 मिलेगी। नहीं, ये पॉइंट हो गया। जब थीटा = π/2 रखेंगे तो r की वैल्यू a मिलेगी, तो a पॉइंट ये हो गया कि ये दूरी a है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, थीटा के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो a, π/2 हो जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, हालांकि अब हमें नहीं बनाना, a, π/2 बना सकते हैं क्योंकि सर्किल जो है ऊपर नहीं जाएगा। ये सर्किल वो सर्किल होता है जिसकी डायमीटर a के इक्वल होती है और ये ऑरिजिन से पास होता है, और ये सर्किल है r = a sin थीटा। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, तो इसको हम कर्व ट्रेसिंग के अंडर में इसको बता देंगे। तो ये सर्किल का इक्वेशन है, ये सर्किल जो कि जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जिसका डायमीटर जो होगा वो ये होगा y एक्सिस पर, यानी थीटा = π/2 पर, और ये हमारा पोल से होकर जाएगा। ये सर्किल है, ये आपका कॉर्डियाइड का हिस्सा है, ये कॉर्डियाइड है, और ये बाहर वाला जो है वो सर्किल का पार्ट है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो ये वाला जो है ये कोई भी हिस्सा नहीं है, और हमसे कहा गया था कि हमें फाइंड करना है डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए एरिया को, जो सर्किल के तो अंदर है लेकिन आउटसाइड है कॉर्डियाइड के। तो हमसे इस कॉर्डियाइड के, ये कॉर्डियाइड जिसका इक्वेशन हमको दे रखा है, इस कॉर्डियाइड के बाहर का एरिया चाहिए और सर्किल के अंदर, ये सर्किल है, सर्किल के अंदर यानी जो हम शेडेड पोर्शन कर रहे हैं वो ये एरिया चाहिए। अब इस एरिया को फाइंड करना है तो हमें इसको स्ट्रिप में तोड़ना होता है। स्ट्रिप जो होती है वो, उसकी शुरुआत होती है इस कॉर्डियाइड से, यानी सेक्टर कह सकते हैं, और यहाँ पर इस सेक्टर वाइज स्ट्रिप होगी जो ऑरिजिन से स्टार्ट होगी। लेकिन हमें यहाँ पर ऑरिजिन से स्टार्ट जो होगी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें डायरेक्ट बनाएंगे। हालांकि ये ऑरिजिन से ही स्टार्ट होती है, लेकिन हमें वो पोर्शन लेना है इसमें सेक्टर का। इसे सेक्टर में बांटा जाता है जो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, लेकिन इस एरिया चाहिए नहीं तो इसको हमने बनाया नहीं। यानी ये जो स्ट्रिप होगी वो शुरुआत होगी इस कॉर्डियाइड से और ख़त्म होगी इस सर्किल पे, और ये सर्किल है उसका इक्वेशन दे रखा है r = a sin थीटा, और जो ये कॉर्डियाइड है, ये कॉर्डियाइड है, इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला दे रखा है r = a 1 - का cos थीटा, जो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है। यानी हमें ये देखना होगा कि ये जो एरिया है वो किन दो लाइंस के बीच में है। तो हम देख रहे हैं कि एक तो ये लाइन है थीटा = 0 और दूसरा थीटा = π/2, इन दो लाइंस के बीच में ये टोटल एरिया है जो मैंने शेडेड किया है। और हम जो सेक्टर यहाँ पर बना रहे हैं, जो स्टार्ट हो रहे हैं इस कॉर्डियाइड से और ख़त्म हो रहे सर्किल पे, सभी का ही एक ही नेचर के हैं कि सभी शुरुआत होंगी सबकी इस कॉर्डियाइड से और सर्किल पे ख़त्म होगी, और ये पूरा रीजन को हमारा ऑक्यूपाई कर लेंगे। यानी हमें इसे यहाँ पर पोल से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि हमें सिर्फ जो है पूरे एरिया को कवर करना है जो यहाँ से ख़त्म होगा। फार्मूला लिख के हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बाकी लिमिट पता करना होती है वो मालूम हो गई, थीटा की 0 से, थीटा = 0 से π/2, इन्हीं दोनों पॉइंट पर ये दोनों कट करते हैं। ये पहले ही हम लोगों ने देख लिया था, और हर एक स्ट्रिप का नेचर भी सामने नज़र आ रहा है कि इस कॉर्डियाइड से स्टार्ट हो रहा है और सर्किल पे ख़त्म हो रहा है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं एरिया का
जो मेरे रिक्वायर्ड एरिया मांगा गया है, यानी कोऑर्डिनेट के अंदर का एरिया है, आउटसाइड एरिया सॉरी, और सर्कल के अंदर का एरिया, यानी हम इसे लिख दें द रिक्वायर्ड, जिसकी हमें ज़रूरत है उस एरिया का फार्मूला। क्योंकि ये पोलर में है तो पोलर में आपको मालूम है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया का फार्मूला होता है आर डी थीटा इंटू डी आर, डी थीटा इंटू डी आर, ये तो फार्मूला होता है इसका। और किस एरिया की बात करें, इसमें जो थीटा की जो लिमिट है वो 0 से लेके π/2 है, और आर की शुरुआत है कोऑर्डिनेट से, यानी आर 1 माइनस कॉस थीटा और ख़त्म हो रहा है आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा से, यानी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से। पहले हम इंटीग्रेट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2 ऐसे लिखा रहने दें, और इस इंटीग्रेशन जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा इस आर पर, डी आर को यहाँ पर अंदर ले लिया जाएगा और डी थीटा यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। आर की वैल्यू है ए 1 माइनस का कॉस थीटा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट थी आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। आर की पावर यहाँ पर 1 है, जब हम लोग इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाती है इंटीग्रेशन में, जैसे कि मालूम है आपको, और यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, अपान में भी 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी लिमिट को अप्लाई कर दी जाएगा, लिमिट यानी आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस का कॉस थीटा है ये, और अपर लिमिट है ए साइन थीटा, और हम लोग जानते हैं इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को अप्लाई कर देंगे। अपान में जो 2 है वो कांस्टेंट है, ऐसे चाहे तो आप इंटीग्रेशन के साइन से भी यहाँ से भी बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन के साइन से भी बाहर ले लेंगे, यानी 1/2 तो बाहर हो गया। थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2 इसकी लिमिट है। अब आर स्क्वायर सिर्फ बचा है, जिसमें अपर लिमिट यानी आर की जगह पर हमें ए साइन थीटा रखना होगा, लेकिन आर का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर है ये, माइनस लोअर लिमिट आर की जगह पर रखना होगा ए 1 माइनस का कॉस थीटा, लेकिन इसका हमें स्क्वायर करना होगा और ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अपर लिमिट हो गई है, माइनस लोअर लिमिट 2 बाहर कर दिया था हमने, और थीटा के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया है सिर्फ। अब इसमें होल अब स्क्वायर पहले तो इनके ओपन कर लेंगे, तो अगले स्टेप में हम जो फाइंड कर रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया को, जो कि आ गया 1/2 इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2 चल रहा था, और पहला ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में अगला जो टर्म है उसमें ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से अपनी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको। ए स्क्वायर यहाँ से देख रहे हैं दोनों टर्म्स में बाहर कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे बिल्कुल, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी a²/2 हो जाएगी। ए स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया। लिमिट थीटा की 0 से π/2 है, वेरिएबल चूँकि अब थीटा ही बचा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिख रहे हैं, आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। हमारे पास अब बचा हुआ है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि इसका होल अब स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर बाहर हो चुका है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर और माइनस दोनों के इंटू का ट्वाइस हो जाएगा, यानी 2 × 1 इंटू कॉस थीटा, यानी 2 कॉस थीटा हो गया, और डी थीटा ये बाहर है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो ये a²/2 बाहर चल रहा है, लिमिट 0 टू π/2 है थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और माइनस का ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 कॉस थीटा और डी थीटा। अब यहाँ से अगर हम देखें कि माइनस कॉमन ले लिया जाए, हालांकि अलग अलग करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं तीनों टर्म का, क्योंकि यहाँ पर लिमिट 0 से π/2 है, हम वैल्यूज़ फार्मूला लगा के आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों कॉस एक, ये भी कॉस ही हमें नज़र आ रहा है साइन और 1, क्योंकि अगर हम साइन की वैल्यू रख दें, क्योंकि एक में बदल दें साइन में या कॉस में, तो हम चाहते हैं कि ये, चलिए किसी में बदल देते हैं, साइन में या कॉस में बदल दें, तो उस कॉस को भी साइन में बदला जा सकता है। पहले मेरा माइंड कॉस में बदलना लगता है, चलिए अब साइन में बदल देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस कॉस की वैल्यू को 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू डीटा, यानी हम पहले ये सॉल्व करना चाहते हैं, फिर इसके बाद में जो है इंटीग्रेट कर लेंगे। a²/2 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
और प्लस का 2 cos थीटा हमारा ये चल रहा है डी थीटा 1, ये माइनस का हो जाएगा 2। यहाँ पर ये थोड़ा सा लॉस रहा हमारा, इसे कॉस में ना बदल के साइन में बदल के, कि हमें फिर इस टर्म का और करना पड़ेगा। अगर हम इसको कॉस में बदलते तो ये एक टर्म हमें नहीं मिलता, क्योंकि आप लोगों के लिए ऑप्शन है, इसलिए हम यहाँ से इससे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो फार्मूला हमारा वैलिस फार्मूला होता है कॉस के लिए वही साइन के लिए होता है। वैलिस लिमिट 0 से π/2 होती है, साइन हो या कॉस हो। लेकिन हाँ इस टर्म का जो कि -2 होगा, -2 को बाहर ले लेंगे और 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाना होगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन आप ये करें जो हमारे माइंड में पहले था वो कर लें, ये गलत नहीं है, लेकिन हमारी स्टेप कम करने के लिए हम यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले रहे हैं इन टर्म में, तो 1 प्लस हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। तो एरिया जो चल रहा था A बराबर A²/2। कैलकुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसा भी चाहें। हम ये चेंज कर दिया कैलकुलेशन का, क्यों, ताकि हम स्टेप कम करना चाहते हैं इसको आपके लिए, हमारे लिए तो ये बढ़ गई स्टेप। जब हमने माइनस बाहर लिया तो ये प्लस हो जाएगा 1, और साइन जो होगा वो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको हम ऐसे लिखा रहने दें, और प्लस का 2 cos थीटा स्क्वायर है। तो आपको अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए आपकी 1 भी चला गया, उसमें 1 एक पहले से एक और आ गया, 2 हो गए थे। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर के बराबर होती है। A²/2 0 to π/2 माइनस ये वैल्यू कॉस स्क्वायर के बराबर है, ये पहले से भी कॉस स्क्वायर, ये दोनों कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो जाएंगे। तो हमें इंटीग्रेशन के कम टर्म होंगे जिनको हमें इंटीग्रेट करना होगा। A²/2 वहाँ पर एक टर्म बढ़ रहा था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था। लिमिट 0 से π/2। आप कम स्टेप में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम तो ये एक स्टेप करके दिखा रहे हैं। ये 2 टाइम्स हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 टाइम्स कॉस थीटा डी थीटा। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इनका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। जब हम इस टर्म का इंटीग्रेशन करने जाएंगे -2 कांस्टेंट ऐसे बाहर ले लेंगे। पहले से जो बाहर चल रहा है वो हमारा A²/2 है, मल्टीप्लाई में चल रहा है, और ये फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो -2 इंटू में है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 0 से π/2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और प्लस का 2 बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन करना होगा 0 से π/2 के बीच में इस कॉस थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में। A²/2 यहाँ पर माइनस का 2, और हम लोग यहाँ पर वैलिस फार्मूला लगा सकते हैं। वैलिस फार्मूला को का लिंक जो है, आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम इस डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका प्रोवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो पावर है वो अपान में आ जाती है, उससे एक कम ऊपर लिख देते हैं। उसमें अगर 1/2 बचता है, जैसे हमारा 1/2 ही है, अगर ज़्यादा पावर होती तो आपको अब ये चीज़ वैलिस फार्मूले में देख लीजिएगा, 1/2 आता है तो π/2 से इंटू कर देते, बात खत्म हो जाती है, यानी इसकी वैल्यू आ गई है। यहाँ पर चाहे साइन होता है या कॉस होता है, दोनों के लिए एक ही, ये पावर नीचे और 1/2 आता है तो π/2 से इंटू कम्प्लीट। अगर ज़्यादा पावर आती है तो क्या आएगा वो आप डिस्क्रिप्शन आप में देख के जो वैलिस फार्मूला है उसका लिंक देख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। +2 इंटू हम लोग जानते हैं कॉस थीटा के इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन थीटा होता है, और यहाँ पर हमें लिमिट लगा अप्लाई करना होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया जो रिकॉर्ड एरिया चल रहा है A²/2 माइनस ये π/2 +2 इंटू इसमें अपर लिमिट, यानी जहाँ पर भी हमें थीटा मिलेगा अपर लिमिट π/2 रख देंगे, दिया जाएगा, और लोअर लिमिट 0 रख देंगे। हम लोग जानते हैं कि अपर लिमिट जो होती है नहीं सॉरी, यहाँ पर जो साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी ओनली 2 आ गया ये। तो इतना भी आंसर छोड़ा जा सकता है, या फिर हम देखें 2 बन गया, 2 को पहले रख दें, प्लस को माइनस वाले π/2 को बाद में लिख दिया, अपान बंद करते इतना भी छोड़ा सकता है, या आप एलसीएम ले लें यहाँ पर 1 और 2 का 2 का इधर इंटू हो जाएगा, 4 माइनस का पाई, 1 का इधर इंटू हो जाएगा, पाई हो गया, 2 इंटू 2 होके हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 A²/4 और 4 माइनस पाई, ये हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।